अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये आज आप देख रहे नहीं मैंने इंग्लिश बोल सकती। अस्सलाम वालेकुम guys, today I've got the opportunity to unbox my mom's new gift. So it is a mobile phone. I'm gonna unbox it to show you how it looks. Okay, so she got the actual phone. So we did unbox it before, but it's fine. So we've got the actual phone. So it's the S24 Ultra, brand new, right in the box. So it's brand new, and she did get the earbuds as well. So these are the earbuds with the phone. So it's a brand new phone. I'm gonna go and unbox it and show you guys how it is. It's the most latest phone as well, and my mom is really happy. She got a new phone. The old one is too old. Yeah, Mama. It has been bought in lockdown. You know, remember it was a lockdown when I got the old one. Yeah, you did. So it's been like 4 years, and this is the brand new phone. Oh yeah. Where's the Apple Pen? So it does have a stylus with it as well. Allow me to hold it. Yes, this is what. It's so big. It's still big for your style. They have different color. Like this is the black one, Yeah, that's and the black one. they There have was a yellow, blue as well. Whatever. yellow is like a golden. Golden is the gold or look like a yellow. It's yellow. Yellow is look like a gold, but it doesn't look nice. I personally like the yellow one, but when we did read in the comment section, one of the person got a yellow one. He And was he hated regretting. it. He regret why I bought this one, so I immediately changed my mind. So this is the black one. So the gray one, the black and gray. It look like gray, but it is a black one. No, this is black. The grey one is like light version. Like you know वो जो स्लेटी सा रंग होता है ना वैसा है, and purple color as well. purple. जामनी सा है. तो this is the But new this one looks way better. This is the most satisfying bit. Oh my god, the screen looks so small. Why it looks so is small? Wait, compare From that. It's the size now of when my you were hand. holding it and I was from here, it looks small. Okay. When I'm So holding that it, is it's like so gonna good. be like giant. ये स्टिकी टेप है जो बच्चा घर में सबसे ज्यादा बोलता है, उसके मुंह पे लगा दी जाए. नहीं. Yeah, that's the big. इधर आओ. That's the best thing about Asian moms getting phones. उसके मुंह पे लगा दी जाए. ये देखिए. लगा ऊपर. जो सबसे ज्यादा घर में बोलता है उसके मुंह पे लगा दी जाए. मेरे मुंह पर ला. नहीं, तेरे मुंह के ऊपर तो टेप भी नहीं टिकनी. Okay, man, next step. The stylus. So there is a stylus as well. So I'm gonna try. Well, this comes in the box, packaging? the phone box, in the packaging. So I'm gonna just show you what comes in. You know, this is some information guides. You do get a SIM, like extractor pin. You get a new charger. And where's the switch? नहीं आता हूँ हैं? हाँ कोई चीज करना नहीं आता हूँ. अल्लाह. फिर ये S20 ये S24 है. So अच्छा, इसके साथ ये क्या आया है? ये earbuds with the phone. हमने चूँकि अगले हफ्ते हॉलीडे पर जाना है, तो उसी की थोड़ी सी शॉपिंग जो है वो कर रही हूँ. वैसे तो मैक्सिमम जो है वो घर पर ही है सब कुछ, लेकिन कोई ना कोई चीज़ जो है वो चाहिए ही होती है. मैंने अपने लिए जो कपल ऑफ लोग पहले ब्लाउज़ ख़रीदा था प्राइमार्क से, तो वो है तो 14 साइज़ ही, लेकिन 14 साइज़ फार टू बिग है. तो मैं जो है वो उसको एक्सचेंज करवा कर लाई हूँ. छोटा साइज़ लिया है, और बच्चों को लॉन्ग हॉलीडे है. फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे की छुट्टी थी, तो दुआ जो है वो भी आज हमारे साथ टाउन आई हुई है. हम मंडे सुबह ही चले गए, तकरीबन 10 बजे हम चले गए थे. तो वहाँ गए तो टाउन खाली था, बिल्कुल रश नहीं था. तो थोड़ी सी हमने शॉपिंग करनी थी, बस ये एक्सचेंज ही करवाना था, और फिर हम जल्दी से वापस आ गए. ये देखें, ये क्या है इसके ऊपर? डबल एंडेड सिलिकॉन क्लीनिंग फेस मास्क ब्रश है. और ये देखिए 3.5 फुट इन्ना का जिन्ना. देखिए जरा
सो एक्सपेंसिव या। और वो जो हमने वहाँ से लिया था TK Maxx इज अ बिगर वन एंड इट्स ओनली लाइक 110 पाउंड। नहीं वो जेल लिया सी। Oh, हाँ वो इलेक्ट्रिक वाला। फार टू बिग एंड इज़ वेरी स्मॉल फॉर द फेस। हाँ देखिए 50-50 पैनियाँ का मिलता हो। और ये यहाँ से मिल जाती है अगर ट्रैवलिंग के लिए होना तो मैंने ये खरीदे हूँ। आखी ये ऑयल अब्सॉर्ब रोलर है ये तो थोड़ी फेस को टेक हो गए ऑयल के। चल फिर हूँ। Next month or after, I think next couple of months going to finish mobile contract. If that one is going to finish, you don't have any concern with that one. घर आकर मैंने बनाई कीमे की टिक्कियाँ। इसकी रेसिपी मैंने तैयार की है बड़ी ईद के लिए। कुछ एक रेसिपीज़ मैं तैयार कर रही हूँ जो कि बड़ी ईद की मुनासबत से होंगी। 3 मिनट रेसिपी में मैं शेयर करती जाऊँगी। तो ये कीमे की टिक्कियाँ जो हैं ये तो लाजमी ही बनेंगी और जिस तरह मैं बनाती हूँ ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है जब पूरी फैमिली ने जाना हो। तो ये जो लिक्विड चीज़ें हैं जैसे शैम्पू है, फेस वॉश, बॉडी वॉश, ये सारी चीज़ें जो है मेन लगेज में ही रखनी है। तो वो सारी पैकेजिंग करके मैं रख रही हूँ। ये स्टैंड, ये ड्राइंग रैक जो है ना, ये पार्ट होता है ना इसका जिसमें ये टक इन होता है, इसका टूट गया था। तो ये पूरे का पूरा सही रैक है लेकिन सिर्फ यही पार्ट है जिस वजह से ये काम करता है, अदरवाइज ये बेकार है। तो हमने काफ़ी कोशिश की कि इसको हम कैसे फिक्स करें, क्योंकि रैक तो सही है तो इसको फेंक देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे 2-3 रैक फेंके यहाँ से जब टूट जाते थे। तो फिर कैसे थोड़ा दिमाग लड़ाया तो ये वुड के पीस पड़े हुए थे, तो वुड के पीस लेकर उसको इस तरह से उसमें होल से बनाकर ये जो स्क्रू होते हैं, ये जो इस तरह से स्क्रू सही है वो इसमें फिक्स हो जाएगा। एक इस साइड पर लगाया है और एक यहाँ इस साइड पर लगाया है। तो स्टैंड जो है वो रेडी टू यूज है, एज फ्लेक्सिबल एज द ओरिजिनल वन। ठीक है। तो अगर इस तरह रैक का ये वाला पार्ट टूट जाए, तो ये भी दुआ की वजह से टूटा था, उसने कपड़े इसके ऊपर सूखने के लिए डाले हैं तो इसके क्रॉस जाके इसको प्रेस किया तो वो टूट गया। तो इस तरह से अगर ये चीज़ भी सही होगी ना इसकी, तो वुड लेकर उसको करीब रख के इसके थोड़े से होल से बनाएंगे तो ये साइज जो है सही हो जाएगा इसका। ये देखिए ये इसके ऊपर लगाया तो इसके ऊपर कपड़े रखे हैं। That's so clever. सो क्लेवर कि अगर इस तरह खराब हो जाए तो उसको सही कर सकते हो। ये देखिए कपड़े इसके ऊपर डालें, सो Stable है स्टेबल है तो ये टूटेगा नहीं। कई हमने तरीके आजमाए ये जुड़ जाए लेकिन नहीं जुड़ा। तो बस जो इसमें इस तरह से लकड़ी में होल से बनाकर बनाने हैं। केक मिक्स बनाया हुआ था, चॉकलेट केक मिक्स, तो काफ़ी देर का ही बना हुआ था तो उससे बेकिंग नहीं की। तो आज ईमान उसी से केक बना रही है। अंडे जो हैं वो व्हिप किए हैं और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है और वनीला एक्सट्रैक्ट डाल देना है। और साथ में जो केक मिक्स है वो मैंने काफ़ी लोग पहले बनाना सिखाया हुआ है तो वही आज यूज़ हो रहा है। और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि इस पे कौन से बकिया इंग्रेडिएंट्स जाने हैं तो वही इसमें डाल दिए हैं और ज़बरदस्त सा केक जो है वो बेक हो जाएगा। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ही ये रेसिपी मैंने शेयर की हुई थी। तो ये देखें ये तब का पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, कुछ इसको ख़राब नहीं हुआ। और चीनी भी इसमें मैंने पहले से ही डाली हुई है और इतनी देर पहले से बनाकर रखा था लेकिन याद नहीं था कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और कुछ
क्या डालना है। तो चूँकि मैंने लिख कर ऊपर रखा हुआ था कि इसमें बकिया कौन से इंग्रेडिएंट्स जाने हैं, तो वो डाल दी और ज़बरदस्त सी ट्रे बेक जो है वो तैयार होगी। 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको बेक किया है मैंने। 25 मिनट में ये केक बेक हो गया था। मैक्सिमम टाइम जो है वो आधा घंटा है और इसको बेक कर लेना है। और बेक करने के बाद हमेशा केक को जो है मैं कवर करके रखती हूँ, ताकि ज़रा थिक से टावल से ना जो पोना होता है थिक सा हो, उससे अच्छे से इसको कवर कर देना है ताकि केक जो है वो ड्राई ना हो। और ये ब्राउनी टिन है जिसमें मैं इसको बेक कर रही हूँ। और इस केक की आइसिंग जो है वो कंडेंस मिल्क से बनेगी। 1 होल कैन ऑफ कंडेंस मिल्क का लिया है। आई थिंक इसमें 397 ml कंडेंस मिल्क था और 1/3 कप कोकोआ पाउडर और 1/4 कप के बराबर इसमें दूध डालना है। दूध इसमें लाजमी डालना है, वरना कोकोआ पाउडर इटसेल्फ काफ़ी ड्राई है और कंडेंस मिल्क में जब उसको मिक्स करना है तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फ़ौरन से जेली जैसी हो जाएगी मिक्स करते करते ही। तो दूध डालने से थोड़ा टाइम मिल जाएगा इसको अच्छे से मिक्स करने में। और 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें बटर डाल दिया है और इसको अच्छे से इस तरह विस्क से मिक्स करते जाना है और इसमें थोड़ा बॉयल सा आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक अब ये तैयार है। अगर इसकी पाइपिंग करनी है तो इसको थोड़ा और पका लेंगे तो ये थिक कंसिस्टेंसी में रेडी हो जाएगी। आइसिंग तो ठंडी करके इसकी पाइपिंग भी हो सकती है, केक को डेकोरेट वगैरह करना है तो। केक को बेक करके रूम टेम्परेचर पर रख देना है ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर इसकी ये जो आइसिंग है तैयार करनी है और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर देना है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जब केक के ऊपर इसको पोर करना है। और बटर पेपर जो है वो निकाल दिया है, इसको थोड़ा सा पोक कर लेंगे ताकि आइसिंग जो है इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। और दिए हुए इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक ही इसको बेक किया है और ये ईमान ने ही केक बनाया है। बस ये है कि जिस तरह रेसिपी लिखी हुई थी उसको फॉलो किया है तो केक जो है वो बन गया है। तो होम बेकिंग जो है वो बहुत ही इजी है। और ये केक मैंने वीकेंड पर बनाया था। वीकेंड में सुबह नाश्ते में खाने के लिए केक जो है वो 2-3 दफ़ा बना लिया है, तो अब लगता है ये बनाना ही पड़ेगा। तो आज का व्लॉग भी बस यहीं तक है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। थम्स अप बटन लाजमी प्रेस किया करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।